Assalamu alaikum, guys. Can you see my screen? Yes, sir. Walaikum Okay. salam, sir. So today we're going to discuss the next topic, which is about the maturity concept of the concrete. So what does this mean? Maturity of concrete mean the hardening of the concrete, or the gaining of the concrete strength, or the gaining of the hardened property of the concrete over the time is known as the maturity of the concrete. And the maturity concept of the concrete is basically it is the concept that by virtue of its non-destructive values, like the temperature of the concrete, curing concrete, and the time that the age of the concrete, we can evaluate, or we can estimate, or we can assess what would be the strength of the concrete, the percentage gain in the strength of the concrete. We can calculate, or we can estimate the amount of the strength. So why this maturity concept of the concrete came into mind of the engineers? So over the years, engineers have developed different kind of techniques to estimate the strength of the concrete non-destructively. It is the non-destructive approach to testing concrete that allows you to estimate early age and compressive strength of the in-place concrete in real time. Okay, so but basically, this is the relationship between three things: the relationship between concrete temperature, time, and the strength gain. So how the strength gain is happened over the time, and what has the temperature role with the gain of the strength. Okay, so only two parameters. If we know two parameters like temperature of the concrete and the time of the concrete for which that temperature was sustained, okay, while the curing of the concrete, so we can estimate the strength of the concrete, gain of the strength of the concrete. Okay, so this is a very important concept. So even you can estimate anywhere. But this concept is being used for different kind of things. So we'll discuss in later slides. So you can estimate anywhere. For example, if you want to have some sort of the concreting in construction area, so wanted to remove the farm work, or wanted to expedite the concreting processes, or wanted to check whether your concrete got matured or not, or whether your concrete has gained enough strength that you can construct over it, or uh, you can load it, or you can expose their concrete to loading. So this kind of maturity concept is being used. Okay, so जी सर सर यहाँ पे स्लाइड पे सामने लिखा हुआ है ना कंक्रीट मेच्योरिटी इंडिकेट्स हाउ फार क्योरिंग हैज प्रोग्रेस्ड। तो सर ये क्योरिंग हैज प्रोग्रेस का क्या मतलब हुआ सर? okay, just a moment. Curing mean the time of the curing. Okay, time and the temperature of the curing. Okay, basically the maturity concept evolve around the time and the curing temperature. Okay, you got my point? हम उसे नहीं कहते मतलब एक चीज़ ख़राब हो जाए तो हम उसे क्योर करें, या नहीं इधर कोई और मतलब? नहीं क्योर और चीज है यार. Curing mean the temperature for which the hydration can take place, the conducive temperature for which the hydration could take place is known as curing. Okay, जी सर, थैंक यू। curing is a kind of arrangement to make the temperature of a concrete conducive for hydration.
for hydration purpose is known as curing. Okay? To expedite schedule or increase safety or to improve construction methods, construction teams want to know the strength of their concrete at job site in real time. So since maturity is related to the concrete strength, the maturity method is a way to accomplish this without solely relying on standard test specimen and laboratory testing. Okay, without laboratory testing, without the testing of a concrete non-destructively, we can estimate the strength of the concrete by non-destructive methods. तो आपने इस कंक्रीट को बेसिकली स्ट्रेंथ कैसे मेजर होती है ना, आप नॉर्मल केस व्हाट वी डू इज टू डिस्ट्रॉय और व्हाट वी डू के जो स्पेसिमेन है उसको वी सब्जेक्ट अंडर लोडिंग and then destructively we can estimate the strength of the concrete. ऐसे ही है ना. But in this case, Yes, sir. आपके पास जो कंक्रीट को आपको जो है यूटीएम में या कंप्रेशन में इसको नहीं रखना स्पेसिमेन को, एंड देन यू कैन एस्टिमेट ऑन सिचु जो कंक्रीट आपके पास खड़ी है, एंड देन यू कैन नो द व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट कंक्रीट. ओके, बाय ओनली virtue of two things, the age of the concrete and the covering temperature. Okay, covering temperature and recovering time. Just two things. For example, आप वैसे मेजर करते हैं ना, वैसे जो कंप्रेशन के थ्रू जो टेस्ट होते हैं तो उसमें कंक्रीट इज मेजर्ड अलोंग इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. ऐसे ही होता है ना, ऐसा ग्राफ आपको मिलता है स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में, या अलोंग द एज यू कैन मेजर द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ. ठीक है, whereas in maturity concept you can have such kind of graphs, temperature and then the age. तो आपके पास एक ग्राफ मिलेगा, तो then with such value you can estimate the strength of the concrete. Okay. Excuse me, sir. जी सर ये जो एज और टेम्परेचर का रिलेशन है, तो ये पहले जो है ना सर ऊपर है, फिर ग्राफ नीचे आ रहा है, फिर ऊपर होती है, इसका क्या रीजन है? Don't look to these graphs. Okay, these were just to show you. इस ग्राफ की बात करें थे, which one graph? सर पिछले वाला जो स्लाइड पे जो ग्राफ था. This one. Where is it? सर इससे पिछले वाला सर ये वाला. You mean this one? सर ये रेड कलर वाला है सर. जी, सर ये रेड कलर वाला नहीं था सर. ये नीचे क्यों आ रहा है? यस सर. सर एज के साथ सर टेम्परेचर सर वो बड़ा है जब. Don't disturb the class. Okay, I will explain it. Please. ठीक है, मैं तो स्लाइड पे अभी आया ही नहीं हूं, आपने देख कैसे ली बच्चे? नो सर. सर ये नहीं सर, ये पिछले वाला जो था इससे सर, ये वाला नहीं. ये वाला आप कहते हैं कि ये नीचे क्यों आ गया? यस सर. टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ. ये डिक्रीज क्यों हो रहा है सर, फिर डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है? अच्छा. ओके, रात के वक्त टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होता, दिन के वक्त फिर इंक्रीज हो जाता है, बीच में फिर उसको क्यूरिंग पानी वानी दे दो फिर डिक्रीज हो जाएगा कंक्रीट. दिस इज द टेम्परेचर ऑफ द कंक्रीट, नॉट द एम्बिएंट टेम्परेचर, माय बॉय. ओके सर, थैंक यू. It is curing temperature. Okay, just maturity concept. Maturity concept is based on the principle that strength gain in concrete is a function of curing time and the temperature. This is a real time. Okay, आपके पास जो concept है इसकी जो ना exact definition ये है. So this concept involve 3 steps. आपको पास to estimate the strength of the concrete. पहले क्या है, track the internal temperature during curing time में आपने क्या करना है, internal temperature लेना है. Then use the tracked internal temperature history
to calculate maturity. History mean temperature आपने देखना है टेम्परेचर, डे का टेम्परेचर क्या है, नाइट का क्या है, एंड किस एज तक आप टेम्परेचर लेते जा रहे हैं. You want, for example, if you wanted to know the covering the strength at 7 day, so you just need to know the temperature, variation in temperature of 7 days. Okay, तो 7 days में आप करेंगे तो आप उसको then you can use the strength maturity relationship to estimate the strength. ठीक है, आपके पास अभी इस ग्राफ को देखें तो मैं भी आप कंफ्यूज ना हो. तो यहाँ पे at day 1 what is the role of the temperature in the development of the strength of the concrete. आप देखें ना, day 1 पे if the temperature is 10 degrees Celsius, about 10 degrees Celsius, आपके पास strength जो है कितनी हो सकती है, so this amount of the strength you can get. Just a moment. ठीक है, आप क्यों जो है आपके पास कोई और कंक्रीट है with you have another type of concrete that is cured at 20 degrees Celsius, just 22 degrees Celsius. At day 1, what will be the strength of the concrete? Similarly, yes, these are the estimates, okay, not the exact value. Similarly, 30. आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है. Just a moment. Guys. Okay. Now you can listen me. सर अब ठीक है. अच्छा, अच्छा, at 34 डिग्री सेल्सियस आपके पास जो है at day 1 day की कंक्रीट है ना कोई भी, तो आपके पास कितना हो सकता है स्ट्रेंथ जो ना बढ़ सकती है. सिमिलरली at day 28 डेज को कंक्रीट को एक्सपोज करें डिफरेंट टेम्परेचर पे, तो वो 28 डेज की जो स्ट्रेंथ है वो जो है कम होती रहेगी. क्यों कम होगी? Because at initial age the concrete has gained a lot of the strength of the concrete. The highest strength of the concrete was achieved at initial age at that temperature. For example, at 40 degrees Celsius, the strength of the concrete for 28 days is much lesser than the strength of the concrete compared to the 20 degrees Celsius at that age. ठीक है, ये जो कंक्रीट है कम क्यों हुई है इसकी स्ट्रेंथ? बिकॉज एट अर्ली एज द स्ट्रेंथ गेन हैपेंड. ठीक है, अब देखो ना, दिस इज अ कर्व फॉर, सपोज दिस इज अ कर्व फॉर 40 डिग्री सेल्सियस एंड हाउ द कर्व विल बिहेव फॉर 20 डिग्री सेल्सियस. 20 के लिए क्या कैसे बिहेव करेगी, कैसे? तो एट 28 डेज वैल्यू, तो 20 के लिए आपको पास maximum you will get the higher strength value for 28 days at the covering temperature of 20 degrees Celsius rather than the 40 degrees Celsius. Okay. सर आपने कहा था कि 7 डेज पे 75% कंक्रीट स्ट्रेंथ अचीव कर लेती है, 28 डेज पे 95 to 90% अचीव कर लेती है स्ट्रेंथ. जी सर इसे चाहिए फिर ये कांस्टेंट रहे ना, ये ग्राफ डिक्रीज हो रहा है तो मतलब स्ट्रेंथ भी तो साथ डिक्रीज होती जा रही है ना, कि नहीं? नहीं, ये जो ग्राफ है ना, ये डिक्रीज वाला ग्राफ है, ये 28 डेज पे डिफरेंट कंक्रीट को टेस्ट किया गया. फॉर एग्जांपल, एक कंक्रीट जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे कवर की गई, 10 डिग्री पे, दूसरी 20 पे, तीसरी 30 पे, चौथी 40 पे. समझ आ रही है ना? देयर वर डिफरेंट टाइप ऑफ कंक्रीट्स दोज वर कवर्ड एट डिफरेंट टेंपरेचर. सो द स्ट्रेंथ ऑफ ऑल कंक्रीट वर मेजर्ड एट 28 डेज. तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं. तो इसके मुराद ये है कि एट हायर टेंपरेचर you can get a reduced amount of ultimate concrete strength with raising the temperature in the concrete. ठीक है,
टेम्परेचर राइज करने से अर्ली स्ट्रेंथ तो बढ़ेगी, लेकिन अल्टीमेट स्ट्रेंथ कम होती रहेगी। होप यू अंडरस्टूड। सर समझ आ रही है, पर आप प्लीज़ ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हमें फिर इस तरह की डिज़ाइन करनी चाहिए ना सर, कि हम 28 डेज तक मतलब कोई टाइम तक इंक्रीज टेम्परेचर दें, उसके बाद डिक्रीज टेम्परेचर कर दें, कि अर्ली स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो। यू डोंट नीड टू इंक्रीज द टेम्परेचर। आपके पास जो क्यूरिंग टेम्परेचर है, जस्ट आप उसको देंगे 7 days to 10 days, दैट्स इट। ओके, नो नीड टू गिव टू Excuse me, sir. हाई टेम्परेचर। हाँ एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर अगर एक कंक्रीट में शुरुआत में सर जो स्ट्रेंथ ऑफ गेन है ना, तो वो अगर स्लो हो रहा है और दूसरे में तेज हो रहा है, तो कौन सा अच्छा होगा सर? जो कंक्रीट में इनिशियली कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है ना ज्यादा हो रहा है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ उसकी कम होगी, ठीक है। और तो जो वो एज स्लोली को फिर इफेक्ट गेन करेगा करेगा ना वो सर? ओवर द लॉन्ग टाइम जो ना लॉन्गर ड्यूरेशन में इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी जी। सही है सर, समझ। प्रोवाइडेड आपके पास जो है गेन एंड स्ट्रेंथ जो है वो सिर्फ टेम्परेचर कंट्रोल्ड हो। ऐसा नहीं है कि आपने कम सीमेंट डाली है और उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो रही है तो आप समझेंगे कि यार लॉन्गर एज में इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, नहीं। टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। ओके सर, समझ आ गया। तो बाकी चीजें सारी सेम होंगी। अच्छा, तो चलें जी, मैच्योरिटी जो व्हाई दिस मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट इज बीइंग यूज्ड, इसका क्यों इस्तेमाल है? द कंक्रीट कैन बी इवैल्यूएटेड इन रियल टाइम, स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट कैन बी इवैल्यूएटेड, less time is spent waiting for the testing specimen to catch up the concrete strength. आपके पास you don't need to test. For example, for quality control and quality assurance can be ensured by using this kind of technology, ठीक है। और टेंडेंट में भी स्ट्रेस आपके पास जो है ना, जो ब्रिजेस हैं या आपके पास जो है ना डेक हैं जो ब्रिज के, या आपके पास जो रीइंफोर्समेंट है, सो दैट कैन बी स्ट्रेस, उसको जो है ना एंड फॉर्म वर्क कैन बी स्ट्रेप्ड आउट एंड रिमूव्ड। फॉर्म वर्क आप रिमूव कर लेंगे तो क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर है, आरसीसी स्ट्रक्चर है या आपके पास प्री स्ट्रेस स्ट्रक्चर है, सो दैट विल कम अंडर लोडिंग, सही है ना। तो आपका यू कैन एक्सपेडिट द स्केड्यूल ऑफ द कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। आपके पास जो है ना डे 3 पे या डे 4 पे आपको स्ट्रेंथ इतनी मिलती है, देन यू कैन रिमूव द फॉर्म वर्क और यू कैन स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ओवर इट। हाँ ठीक है ना, आपके पास आप शुरू करना चाहें तो आपके पास मिनिमम स्ट्रेंथ जो है आपके पास जो रिक्वायर्ड हो, तो देन इफ यू नो दैट स्ट्रेंथ in earlier time, then you can start construction, and or you can schedule your construction again to expedite the construction process, ठीक है। आप उसको कर सकते हैं एंड देन उस केस में जैसे यहाँ पे आप देख लो ना, डिफरेंट आपके पास कंक्रीटिंग हो रही है, फॉर्म वर्क विल बी रिमूव्ड आफ्टर 14 days or after 20 days or after 10 days, you don't know, but with that maturity concept you can remove the form work by knowing the strength of the concrete, the stripping strength of the concrete. Stripping strength समझते हैं? Stripping strength, the strength at which the form work can be removed off, the strength that the concrete can take its own load, okay, this own self dead load, ठीक है। तो उसको जो है known as stripping strength। एक्सक्यूज मी सर। जी सर आपने अभी कहा ना कि इस मेथड से हम क्वालिटी कंट्रोल वाले ये पता कर सकते हैं कि कंक्रीट की स्ट्रेंथ क्या है। जी जी। सर अगर हमारे पास एक कंक्रीट की बिल्डिंग बनी हुई है पहले से और हमें कहा जाए कि इसकी स्ट्रेंथ आप मालूम करें, तो इस मेथड से हम कर सकते हैं कि नहीं? आप मत करेंगे माइक जॉब में। अच्छा, उसके लिए ना ये मेथड फिजिबल नहीं है। पता क्यों फिजिबल नहीं है? बिकॉज यू डोंट नो द हिस्ट्री ऑफ द टेम्परेचर एट विच द बिल्डिंग वाज कवर्ड।
ठीक है। और क्योरिंग तो उसकी फॉर एग्जांपल आपको पता है कितना टेम्परेचर था, कैसे था, आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए ना टेम्परेचर वेरिएशन की और उसकी एज की, सही है ना। दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल और फिजिबल फॉर न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स, न्यूली कंस्ट्रक्टेड आरसी स्ट्रक्चर्स और द कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। मीन आपके पास 20 दिन हो गए हैं, 25 दिन हो गए हैं, 30 दिन हो गए हैं, सही है ना सर यही कंफ्यूजन था, थैंक यू जी। स्टिल कंफ्यूजन क्लियर हो गई, कंफ्यूजन Okay. क्लियर हो गई। यस। अच्छा, आप जो है ना उस स्ट्रेंथ आप फाइंड करना चाहिए ना किसी भी बिल्डिंग की ऑन साइट और ऑन सिचु स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। देयर आर सो मेनी अदर मेथड्स, नॉन डिस्ट्रक्टिवली मेथड्स are available for estimating such kind of strength, ठीक है ना। one of them is the ultrasonic pulse velocity, another one is the knowing the, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना उसका डायनामिक मॉड्यूलस ऑफ वेलोसिटी, उससे भी आप कर सकते हैं। And then the another one method is the Schmidt's hammer, आपके पास some lab में available है। And the one of the method is the Wensor probe. So there are so many techniques to estimate the strength of the concrete, ठीक है, सही है ना। एंड मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट ना आप सिर्फ जो है ना ये फॉर्म वर्क रिमूवल के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए यूज करते हैं मेनली, ठीक है। तो अब देखिए सर, जी जी सर इसमें कोई रेंज है कि हम स्ट्रेंथ इतनी हो तो फिर हम उस वक्त फार्म वर्क हटाएंगे? ये बेटे आप आगे आके ना आप सुनोगे तो फिर जो ना आपको सही समझ आएगी, आगे जो ना आ रही है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है, अब इसलिए आपको मैंने कहा भी था कि आप मिस ना करें, सही है ना। अच्छा सही है, सही। अच्छा, ये जो है ना अभी फार्म वर्क है, अब देखो इसको फार्म वर्क को हमने रिमूव किया है, तो हमें तो नहीं पता था कि ये कंक्रीट गॉट मैच्योर्ड इन दिस मास कंक्रीट है ना, मास कंक्रीट है ना, तो दैट फार्म वर्क वाज रिमूव। और किस एज पे रिमूव हुआ, इवन बाहर लोग फार्म वर्क को ना 14 डेज पे, थंब रूल है ना, 14 डेज पे रिमूव करते हैं बच्चों। 10 to 14 days normally are required to remove the farm work in normal cases. Somewhere in hot temperature cases 10 days लेते हैं, there are in cold areas 14 days are taken to remove the farm work, सही है ना। और which is not the correct case। आप जो है आप उसकी जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ है उसको मैच्योरिटी रूल से एस्टिमेट कर सकते हैं, और 14 डेज के बजाय 20 डेज भी हो सकता है, और 10 डेज के बजाय इट कुड बी रिमूव्ड एट डे 7, डे 8, डे 3, डे 4, ठीक है, उस पर भी रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके पास देखो ना रिमूवल के लिए कितना जो है आपके पास जो है ना जो हसल वर्क है, देन यू नीड टू डू दैट रिमूवल। तो अगर आप इफ यू डोंट नो द एग्जैक्ट डे और द टाइम ऑफ द रिमूवल, तो आपके पास जो है आप जो है दिस विल बी अ ह्यूज कैटास्ट्रॉफ एट द कंस्ट्रक्शन साइट, ठीक है ना, सारी छत जो है ना नीचे होगी। अच्छा, हियर इज द मेथड। अच्छा, पहले जो है ना मैच्योरिटी सुने। मैच्योरिटी जो है, मैच्योरिटी इज द बेसिकली द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड द टेम्परेचर, sum of the product of the time and the temperature. You can estimate it like M means the maturity index, that is always expressed in term, इसकी यूनिट पता क्या है, सेंटीग्रेड सेल्सियस, सॉरी सेंटीग्रेड सेल्सियस और सेल्सियस सेंटीग्रेड और, ठीक है ना, सेंटीग्रेड और सेल्सियस आर। अब देखो ना, अकॉर्डिंग टू ACI ये जो कोड है और ASTM कोड है कैन बी यूज्ड टू इवैल्यूएट द स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। तो अब देखो ना, हियर क्लॉक आवर्स हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल इफ इट इज 18 और 20 आवर्स, जितने भी हैं आपके पास आवर्स हैं, एंड हियर इज द कंक्रीट टेम्परेचर। तो इनिशियल इफ द टेम्परेचर इज लो
तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, तो द प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड टाइम विल गिव यू मैच्योरिटी इंडेक्स्ड वैल्यू, मैच्योरिटी। ठीक है, तो आपके पास क्या है? अच्छा, टेम्परेचर में आपके पास देयर इज अ ट्रिक। क्या है? तो आपका टेम्परेचर जो है, इफ द टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास जो है देयर मस्ट बी अ डेटम टेम्परेचर और विच यू कैन एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर। डेटम टेम्परेचर क्या होना चाहिए? वैसे नॉर्मल केस में क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर गैस में है ना 0 डिग्री क्यों लेते हैं भाई? एट 0 डिग्री सेल्सियस बिकॉज वाटर गेट फ्रीजेस। ठीक है ना, वाटर नॉर्मली फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस, दैट्स व्हाई वी टेक द टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो अब कंक्रीट की हाइड्रेशन के लिए डेटम टेम्परेचर इज ऑलवेज टेकन एज -10 डिग्री सेल्सियस। -10 डिग्री क्यों लेते हैं भाई? क्योंकि सर -10 तक रेट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो जारी रहता है सर। Exactly. The hydration process ceases at 10 degrees Celsius, -10 degrees Celsius, below which the hydration could not be taken place. ठीक है, तो it is not possible to proceed hydration process below this value. ठीक है, इस वैल्यू से नीचे जो है ना हाइड्रेशन प्रोसेस नहीं होता। सही है ना? तो ये जो है ना, इफ द कंक्रीट इज एट -10 डिग्री सेल्सियस, तो हाइड्रेशन टेम्परेचर स्टॉप हो जाएगा। तो इफ इट इज एट -9 डिग्री सेल्सियस, देयर विल बी अ स्लाइट हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन होगी, बहुत स्लो होगी, बट देयर विल बी हाइड्रेशन रिएक्शन। हाइड्रेशन मीन द रिएक्शन ऑफ वाटर विद सीमेंट। समझ आ रही है ना? अच्छा, डेल्टा टी मीन टाइम elapsed। आपके पास कितना टाइम गुजरा है ना, तो टाइम elapsed आप कौन सा लेंगे? द टाइम एट विच कंक्रीट इज प्लेस्ड, ठीक है, टू द टाइम एट विच द एस्टिमेशन द मैच्योरिटी इज एस्टिमेटेड। ठीक है, मैच्योरिटी इज कैलकुलेटेड। फॉर एग्जांपल 3 डेज के लिए क्या होगा? 72 आवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना, it will be multiplied with 72 hours. ठीक है, you got this value. Similarly, आपके पास जो है ना अभी है a sample of a concrete cured at 18 degrees Celsius for 28 days is fully matured concrete. ठीक है, तो maturity could be equal to क्या होनी चाहिए भाई? The sum of the product of the time and temperature. तो क्या हो, आपके पास जो है ना 28 डेज को आप आवर्स में कन्वर्ट करें, तो 28 into 24 and then the 18 degree Celsius is that is average temperature. Okay, average लिया है 18 डिग्री 18 minus -11 और -10। ठीक है, जो भी आपके पास है, तो this will give you +28 +29। सर अगर हमें डेटम टेम्परेचर ना दिया गया तो हम -10 लेंगे, -10 ले लेंगे, -11 भी ले सकते हैं। इन कोड सम कोड सेज -11, सम कोड सेज -10। इससे इतना फर्क नहीं पड़ता 1 डिग्री सेल्सियस से। अच्छा, तो ये जो है आपके पास जो है नॉर्मली द कंक्रीट will known be fully matured if the maturity of a concrete is 19,488। 19,488 मीन 9, इसको जो ना ऐसे लिखा है इन्होंने राउंड ऑफ करके ना, तो in standard calculations the maturity of a fully cured concrete is taken as 19,800 degree Celsius hours। ये 19,800 जो है ना सेल्सियस आवर जो है, if you have this value for maturity, so this mean concrete is fully matured से क्या बराबर है? मतलब उसकी सर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट सही हुई है जी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलपमेंट सही हुई है। अच्छा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ डेवलप होगी या डिजाइन स्ट्रेंथ डेवलप होगी? डिजाइन स्ट्रेंथ जिसके लिए वो डिजाइन किया गया था। एग्जैक्टली। अब देखो ना,
आप इस ग्राफ में आप देखें, यहाँ पे आप देखें डे 3 पे भी कुछ वैल्यू है इसकी स्ट्रेंथ की. देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ कंक्रीट. ठीक है, कंक्रीट ए इज कवर्ड एट एलिवेटेड टेम्परेचर, कंक्रीट बी इज कवर्ड एट अनदर काइंड ऑफ टेम्परेचर, कंक्रीट सी जो है एक कोई और टेम्परेचर है उस पर कवर हो रही है, कंक्रीट सी. सही है. तो क्या है, एट 28 days देयर इज अ डिजाइन स्ट्रेंथ. तो ये तीनों टाइप, all three type of concrete may have same value at 28 days. ठीक है. तो ये जो डिजाइन स्ट्रेंथ है 28 days पे, दिस वैल्यू will have correspondence maturity value will be 19,800 Celsius hours. ठीक है ना. आपके पास design value for any kind of concrete at 28 days, at the age of 28 days will be 19,800 Celsius hours. सही है ना. एक्सक्यूज मी सर, इसका मतलब ये कि जो कंक्रीट की लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेंथ होती है वो मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती. लॉन्ग लास्टिंग स्ट्रेंथ है जो है ना, ऑलमोस्ट 95 to 97, 98% स्ट्रेंथ गॉट अचीव्ड एट 28 days. तो हम तो 28 days पे जो ना जो डिजाइन स्ट्रेंथ है ना, कंक्रीट इज ऑलवेज डिजाइन फॉर इट्स 28 days वैल्यू. पता है आपको ये बात? यस सर पता है. अच्छा, आप 28 days वैल्यू इसलिए करते हैं, उसके बाद जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है ना, जो इंप्रूव होती है ना आफ्टर 28 days, कुछ भी इंप्रूव हो, जैसे 95% अचीव हुई 28 days तक, and then the rest of the 5% concrete was achieved over the life of the structure of the concrete. ठीक है ना. तो कंक्रीट स्ट्रक्चर्स की लाइफ पे जो ना वो जो स्ट्रेंथ थी वो जो ना डिस्ट्रीब्यूट हुई 5%. वो जो 5% है that is taken as a factor of safety. Factor of safety for what? Factor of safety for the concrete durability issues. For example, after some time, after 3-4 years, concrete may have some kind of durability issues. उसमें कुछ मसाइल आ सकते हैं ना, जैसे जो ना अल्कली सिलिका रिएक्शन इंड्यूस हो गया कंक्रीट के अंदर, या देयर काइंड ऑफ सल्फेट अटैक गेट इवॉल्व और उसमें जो इंट्रूड हुआ किसमें, कंक्रीट की बॉडी में, तो उसकी वजह से ड्यूरेबिलिटी इश्यूज होंगे. तो उन ड्यूरेबिलिटी इश्यूज की वजह से जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ अगर लो भी हो तो वो हम समझते हैं कि उसकी जो एटलीस्ट डिजाइन स्ट्रेंथ जो है वो जो ना वो क्या होनी चाहिए, सिक्योर्ड होनी चाहिए. तो इसलिए जो डिजाइन स्ट्रेंथ इज ऑलवेज टेकन एज 28 days वैल्यू. और 28 days वैल्यू इसलिए भी लेते हैं डिजाइन स्ट्रेंथ, बिकॉज एट 28 days द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट कैन बी मेजर्ड. सो ये जो है अगर आप एक साल बाद लेंगे ना तो उस वक्त मेजर कर सकते हैं, बट दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड वैल्यू. ज़ाहिर है कुछ तो स्टैंडर्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड जो ना मतलब डिसाइड करना था कंक्रीट साइंटिस्ट ने, तो देन दे हैव डिसाइडेड 28 days वैल्यू एज द स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर डिजाइन स्ट्रेंथ. सही है ना. तो उस पे ऑलमोस्ट 95% आपके पास जो ना कंक्रीट स्ट्रेंथ जो ना गेन कर लेती है एक, और उस पे जो दूसरा ये है कि इजी टू मेजर है. Just within a month you can get that design value whether the concrete was accurate, giving accurate result or not. और उसके अलावा जो है ना क्वालिटी एश्योरेंस में भी जो ना और क्वालिटी कंट्रोल में दोनों में जो है इसका यूज है, that can be assessed or can be evaluated, and the value can be used in the design as well. ठीक है ना. अब ऐसा नहीं होता कि कंक्रीट कंस्ट्रक्शन हो रही हो उस वक्त जो है ना कंक्रीट के स्पेसिमेन लिए जाते हैं और उसकी स्ट्रेंथ मालूम होती है. उस वक्त तो बिल्डिंग बन चुकी होती है, क्या फायदा है फिर स्ट्रेंथ मेजर करने का बच्चों? सर सवाल दोबारा रिपीट करें सर. एक जो है ना आप 28 जब कंक्रीट जब कास्टिंग हो रही हो बिल्डिंग में, छत उसकी बन रही है, तो आप उसकी में क्यूब लेते हैं, उसके क्यूब और फिल करवाते हैं. आफ्टर 28 days तो आपके पास कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है डिजाइन स्ट्रेंथ के इक्विवेलेंट नहीं है, तो उसे आप क्या करेंगे फिर उसका देन व्हाट विल यू डू? रेट्रोफिटिंग करेंगे सर उसमें. नहीं, रेट्रोफिटिंग क्यों करेंगे भाई? आपको तो
आपको दो प्रोसेस होते हैं ना, वन इज द क्वालिटी एश्योरेंस एंड अनदर वन इज द क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है ना। देयर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेसेस। क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो होती है एट लेटर एज वी चेक, आपने वो एक कंस्ट्रक्शन होगी, ये है कंस्ट्रक्शन के बीच में भी हम जो है ना कुछ स्पेसिमेन लेके उसको चेक कर रहे होते हैं कि वेदर इट इज ओके और नॉट, इट इज एट पार और नॉट, ठीक है ना। क्वालिटी कंट्रोल में क्या है, आपकी जो कंक्रीट आप यूज कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ पहले से आपको पता है, क्योंकि पहले से आपने जो ना 20 जो मिक्स डिजाइन होता है ना, तो मिक्स डिजाइन करके आप जो है ना 28 डेज वैल्यू आपने कैलकुलेट की होती है, ठीक है ना। आपने पहले से आपको पता होती है कि इसकी ये वैल्यू होगी 28 डेज, ठीक है ना। तो एट क्वालिटी कंट्रोल you must know what kind of concrete you are giving in, you are pouring in, whereas quality assurance is the estimation or the calculation of the concrete properties during construction times. कंस्ट्रक्शन फेज में भी आपको थोड़ा सा आपको अंदाजा होना चाहिए ना कि आपकी जो कंक्रीटिंग हो रही है वो जो है अश्योर्ड है कि नहीं, समझ आ रही है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। तो यू नो द मैच्योरिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा, इसमें मैच्योरिटी वैल्यू आपके पास ये है, क्या है 1988, एंड देन देयर इज अ फार्मूला टू दिस। क्या फार्मूला है? दैट फार्मूला इज नोन एज फ्लो-मैन इक्वेशन। इट इज नोन एज फ्लो-मैन इक्वेशन. From this equation, we can calculate the percentage of the strength of the concrete. Percentage of what? Percentage of the design strength. Okay, 28 days value. ठीक है ना? Percentage strength of the concrete can be equal to A plus B times log natural log है. Natural log नहीं, that is the इसको क्या बोलते हैं? कौन सा log है? Log base 10. Common log. अच्छा, log into maturity divided by 1000. Maturity की जो वैल्यू होगी ना, that will be divided by 1000. उसका जो फिर log लेंगे, log को मल्टीप्लाई करेंगे b से, b is the coefficient है log में, फ्लो-मैन कोफिशिएंट फॉर मैच्योरिटी इक्वेशन, ठीक है, a and b से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन दिस वैल्यू विल बी एडेड इनटू वैल्यू ऑफ द a, तो देन यू विल गेट द परसेंटेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट. सही है ना? अच्छा, अब आपके पास अब देखें कि स्ट्रेंथ एट 28 डेज जो है एट 18 डिग्री सेल्सियस, ये जो मैच्योरिटी है, अब देखो ना 19 मेगापास्कल ये मैच्योरिटी थी ना, तो इसमें कोफिशिएंट आपके पास क्या है, ए एंड बी. इफ द कंक्रीट स्ट्रेंथ जो है, स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इन मेगापास्कल है ना, इफ इट इज लेस देन 17.5 मेगापास्कल. अब आपके पास था, अब यहाँ पे आपने देखना है सिर्फ टेबल पे, टेबल आपको जो है मेमोराइज हो जाएगा. जस्ट लुक एट टेबल. पहले स्ट्रेंथ को देखें. लिसन, द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप, ठीक है ना, 4 कैटेगरीज. कैटेगरी 1 है क्या है, लेस देन 17.5 megapascal, less than the multiple of 17.5. इसका multiple 17.5 का क्या है? What will be the twice of this value? क्या होनी चाहिए? 35. तो आप देखें 17.5 to 35 आपने दूसरा आपने रखना है. तीसरा क्या है? Then the multiple of 3 क्या होता है? That is 52.5, 35 to 52.5. आखिरी आपके पास क्या है? More than 52, 52.5 to 70 for high strength concrete. तो आपके पास कोफिशिएंट क्या है? These coefficient, for if it is less than 3, that is A will be 10 and B will be 68. आपने ये वैल्यू याद रखनी है. फर्स्ट लाइन क्या है? If it is 17.5 मेगापास्कल. जी बच्चे,
हम कुछ स्ट्रेंथ परसेंटेज मालूम कर रहे हैं ना, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि ए और बी की कौन सी वैल्यू लेनी है? एक मिनट यार, आ रहा हूँ उस पे। अब आपके पास जो है ना डिजाइन स्ट्रेंथ है 28 डेज पे लेस देन 17.5, तो आपने ए वैल्यू क्या लेनी है 10, बी वैल्यू क्या लेनी है 68, एंड फॉर अनदर वैल्यूज आप जितने 17.5 का इंक्रीमेंट आप ऐड करते रहे ना बाकी जो केसेस में, उस केसेस में जब आप 17.5 का इंक्रीमेंट ऐड करेंगे तो यहाँ ए वैल्यू को -11 करते रहे। कितना 11 करते रहे? -11, ठीक है ना? तो सॉरी +11, इसमें +11 करते रहे तो क्या आ जाएगी 10 से ये 21 पे आ जाएगी, एंड देन इसको आप -7 करते रहे। ए को प्लस करना है 11, बी को क्या करना है -7। तो दिस अब देखते जाइएगा, आपके पास पहला वंस आपने सिर्फ 17.5 आपने याद रखना है। इफ इट इज लेस देन दिस वैल्यू so the A coefficient will be 10 and the B will be 68. अच्छा, नेक्स्ट क्या कैटेगरी है 17.5 to 35, इसके लिए आप +10 करें, +11 करेंगे तो क्या हो जाएगा A will be 21 and B with -7 value of 68 will give you 61. तो सिमिलरली आपके पास थर्ड केस क्या है, आप इसमें 21 में +11 करें क्या हो जाएगा 32, आप 61 में -7 करें क्या होगा 54। सिमिलरली तो इसमें आप क्या प्लेस करो, अब फोर्थ कैटेगरी क्या है 17.5 आप मजीद ऐड करें 52 में तो 70 हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो इसमें जो है इसका 32 में आप जो ना आप 11 प्लस करें तो दिस विल गिव यू 43, ठीक है। सिमिलरली इधर आप 7 माइनस करें तो कितना रह जाएगा आपके पास 47, क्या रह जाएगा 47। तो इसमें आप ये वैल्यू आप पुट करेंगे प्लो मैन इक्वेशन में, तो देन यू विल गेट द परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। आगे आपको एक न्यूमेरिकल करवाता हूं स्ट्रेंथ जी सर। सर ये इस जो टेबल में लेफ्ट साइड पे है सर, ये स्ट्रेंथ ऑफ फुली मैच्योर्ड कंक्रीट है सर? फुली मैच्योर्ड कंक्रीट है। ओके सर। स्ट्रेंथ है 28 डेज। अब देखो ना इसकी आपने वो लेनी है ना, क्या कहते हैं परसेंटेज लेनी है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना डिजाइन वैल्यू कितनी है, मैं एग्जांपल में देता हूं। इफ द डिजाइन वैल्यू इज 40 डिग्री सेल्सियस, क्या है नहीं सॉरी 40 मेगापास्कल। 40 मेगापास्कल कहां पे फॉल करती है, इस थर्ड में फॉल करती है ना। यस सर, थर्ड में सर 32 और 54 सर। अच्छा, इसके लिए ए क्या आएगा 32, बी क्या आएगा 32 सर और 54। तो इसमें आप पुट करेंगे तो देन इफ यू नो द मैच्योरिटी, जिस एज पे कवर किया और जिस टेंपरेचर पे कवर किया, तो आपके पास परसेंटेज ऑफ द स्ट्रेंथ आपके पास आ गई। इफ द परसेंटेज फॉर एग्जांपल इफ द परसेंटेज ऑफ द स्ट्रेंथ इज 50%, इफ इट इज 50%, समझ आ रही है ना। तो व्हाट विल बी द स्ट्रेंथ एट दैट एज, ये जो मैच्योरिटी आई थी इस पे स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए 20 मेगापास्कल सर। 20 मेगापास्कल। ओके, ये कंसेप्ट है आपके पास। इफ यू नो द मैच्योरिटी आप जो उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड देन यू नो द फार्मूला ऑफ द Plow-Mann इक्वेशन, तो देन you can get the percentage of the strength with respect to its design value। सही है ना? सही है सर, समझ आ गया। अच्छा, अब आपको मैं एक बिट करता हूँ आपके साथ एक और सर जरा ये मैच्योरिटी वाला समझाएंगे ये किस तरह मालूम करें अगर 50% स्ट्रेंथ हो तो। एक और चीज भी है ना, लिसन बच्चों, पुट दिस मैच्योरिटी वैल्यू आप क्या पुट करो, ये मैच्योरिटी वैल्यू पुट करें, क्या है 1988, इसमें इसका लॉगरिथम ले लें और बी ए की वैल्यू यहां से पुट करें 32 and 54, you will get 100%, you will get 100%. What does this mean? This mean the concrete is fully mature,
you have the strength of 40 megapascal. समझ आ रही है? यस सर। अच्छा, अभी एक न्यूमेरिकल करते हैं. Strength of a simple of fully matured concrete is found to be 40 megapascal. Find the strength of the identical concrete at the age of 7 days when cured at an average temperature during daytime at 20 degrees Celsius and night time at 10 डिग्री सेल्सियस. आपके पास जो है ना 24 घंटे होते हैं ना, तो 24 घंटों में नाइट का जो टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस है और डे का टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस है. तो वो कहता है 7 डेज पे इसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए. सही है. तो कैसे कैलकुलेट होगा आप देखो. पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कैलकुलेट द मैच्योरिटी ऑफ दिस. मैच्योरिटी कितनी होगी इसकी. तो ये मैच्योरिटी को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया. इसको 12 वार पे किया ना, 7-12 बिकॉज बोथ हैज डिफरेंट वैल्यूज टेम्परेचर की ना. 12 वार्स के लिए डिफरेंट है एंड अनदर 12 वार्स के लिए डिफरेंट है. सही है ना. तो आप देखो ना 7 डेज को नाइट टाइम के साथ आपने कैलकुलेट किया एंड अगेन 7 डेज आर कैलकुलेटेड विद द डे टेम्परेचर. ठीक है ना. तो -11 वाज टेकन एज डे टेम्परेचर. तो आपके पास क्या वैल्यूज आई हैं. तो आपके पास 4368 सेल्सियस डिग्री सेल्सियस आर ये मैच्योरिटी आई है. तो इस मैच्योरिटी को 40 डिग्री पे आपके पास ए वैल्यू क्या थी 32 एंड बी वैल्यू क्या थी 54 एज वी हैव डिस्कस्ड लास्ट स्लाइड. तो देन आप इस पे पुट करें. तो इसमें जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आपने ना पहले कैलकुलेट करते हैं. ठीक है ना. जो मैच्योरिटी होगी ना उसको 1000 पे डिवाइड कर लेंगे. तो दिस विल बी 4.368. ठीक है. तो इसका आप लॉग लेंगे. तो लॉग क्या आएगा. जो भी लॉग आएगा इसके साथ मतलब 54 के साथ आप इसको जो ना मल्टीप्लाई करें एंड देन इसमें प्लस करें. क्या करें 32. तो यू विल गेट 66.5. इसकी यूनिट क्या होगी 66.5 की. ये परसेंटेज है सर, कोई यूनिट. Okay, this is percentage. Percentage of what? Percentage of the design value. ठीक है ना. Fully matured concrete. तो fully matured में कितनी थी 40 था ना मेगापास्कल. तो 40 मेगापास्कल को आप परसेंटेज कैलकुलेट करें इसकी. तो 26.5 मेगापास्कल आपके पास वैल्यू आई है 7 डेज पे. अब आपको वैसे लोग कहते हैं ना नॉर्मली कि जो डे 7 पे 70% स्ट्रेंथ होती है या 75% स्ट्रेंथ होती है. ठीक है ना. तो आपने खुद देख लिया इफ द कंक्रीट इज मैच्योर्ड एट 10 डिग्री सेल्सियस फॉर नाइट एंड 20 डिग्री सेल्सियस फॉर डे. तो उसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए. उसकी कितने परसेंटेज उसकी गेन होती है 66.5. इफ इट इज फॉर 20 डिग्री सेल्सियस फॉर बोथ नाइट एंड डे दोनों के लिए बराबर होती तो फिर क्या होती. जरा कैलकुलेट करो. शाबाश. नाइट का टेम्परेचर भी 20 होता तो फिर क्या होता बच्चों. ज्यादा होता फिर से. कितना ज्यादा होता. डबल. जी. सर जो डे टाइम का था उसका डबल होता था अगर इसके टेम्परेचर्स बराबर होते सर. तो इसमें मेरे पास जो है 5208 आपके पास क्या है मैच्योरिटी आएगी. तो दिस मीन आपने लॉग किसका लेना है 5.2 का. 5.2 का आप जब लॉग लेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आपके पास कुछ डिफरेंस बनेगी ना तो आप 54 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन 32 में प्लस करेंगे देन दिस विल गिव यू अ वैल्यू. तो आपके पास आप खोलो जरा लॉग जस्ट अ मोमेंट मैं आपको कैलकुलेट करके दूं. This will give you 0.71
0.716 71% हो जाएगा सर। 71% हो जाएगा। यस सर, 0.71 है तो एग्जैक्टली 70.44 मेरे पास है, तो एग्जैक्टली 71% हो जाएगा। तो दिस मीन कि आपके पास जो है 20 डिग्री सेल्सियस पे आप जो है बिल्डिंग में कवर करें तो एट 7 डेज यू कैन गेट 70%, ठीक है ना, ऑलमोस्ट 70, ठीक है ना। सिमिलरली 14 डेज पे कितनी होनी चाहिए जी? सही, जो टेम्परेचर हमने लिए हुए हैं ये 20 और 10, तो ये पीक टेम्परेचर हमने लिए क्योंकि मतलब दोपहर में तो ज्यादा टेम्परेचर होगी लेकिन सुबह के टाइम थोड़ी कम होगी, तो ये पीक टेम्परेचर है डे के हिसाब से। ये 12 आवर का एवरेज है और दूसरे भी 12 आवर का नाइट का एवरेज है, ठीक है। ओके सर, समझ आ गई। 24 आवर का भी एवरेज लेके आप कर सकते हैं। सही है सर। तो नॉर्मल केस में जो मैच्योरिटी मीटर होता है ना, वो कंक्रीट की सरफेस पे हम उसको रख लेते हैं और वो टेम्परेचर मेजर करता रहता है, तो वो आपको ऐसे डेटा देता है इस तरह कि आपके पास ओके सर, समझ आ गई। ऐसा डेटा आपके पास एज भी आ रही होती है, डेटा भी आ रहा होता है, ऑटोमेटिकली आपको मैच्योरिटी निकाल के दे रहा होता है। अच्छा, उस मैच्योरिटी में ना आगे फिर क्या होता है, लिसन, उसमें प्लो मॉन मेन में आपने जो वो है उसका जो फॉर्मूला है आपने ऑलरेडी फीड को किया होता है सॉफ्टवेयर में, उसमें जो वैल्यू मैच्योरिटी आ रही होती है ना विद द टाइम, तो वो आपको वैल्यू दे रहा होता है, परसेंटेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, परसेंटेज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ये डे 1 पे कितनी थी, डे 2 पे कितनी है, डे 4 पे कितनी है, ठीक है। तो इफ यू नो द अल्टीमेट स्ट्रेंथ और द डिजाइन स्ट्रेंथ, तो मतलब जो भी वैल्यू है आपने फीड की होगी ना डिजाइन स्ट्रेंथ, तो वो आपको जो ना स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करके दे रहा होता है, डे 1 पे कितनी स्ट्रेंथ आ गई है, डे 2 पे कितनी आ गई है, डे 3 पे कितनी आ गई है, एग्जैक्टली तो आप जो ना फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सही है सर, समझ आ गई है सर। अच्छा, अब एक्सक्यूज मी सर। जी सर हमने जो ये स्टैंडर्ड वैल्यू ली है मैच्योरिटी की 19,800, तो इससे ज्यादा वैल्यू आ सकती है सर मैच्योरिटी की? मैच्योरिटी है सर? इससे ज्यादा वैल्यू भी आ सकती है, लेकिन ये स्टैंडर्ड वैल्यू है ना, तो आप कुछ सोचेंगे कि आप इफ इट इज मैच्योर्ड, तो हम इस पे कैप रखते हैं ना कि इतनी कंक्रीट की मैच्योरिटी वैल्यू जो ना इस ये वैल्यू आ गई तो दिस मीन कि कंक्रीट गॉट मैच्योर्ड, ठीक है ना। उसको फिर आगे सही है सर, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मजीद कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। जैसे जो है ना कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है 28 डेज पे डिजाइन स्ट्रेंथ आती है ना आपके पास, तो वो तो 95% स्ट्रेंथ है या 92% स्ट्रेंथ है या 95% है, 98% है, वो वेरी करती है टेम्परेचर के साथ ना। तो आपके पास लॉन्ग रन में ओवर द इयर्स कंक्रीट उसके बाद भी स्ट्रेंथ तो गेन कर रही होती है, सो दैट गेन वैल्यू हम उसको कंसिडर नहीं करते, तो ओनली वी कंसिडर द डिजाइन वैल्यू एट द एज ऑफ फॉर द एज ऑफ 28 डेज, ठीक है, समझ आ रही है ना। जैसे उस यस स्ट्रेंथ सर। को क्यों कंसिडर नहीं किया जाता सर? जी ये जो 28 डे के बाद स्ट्रेंथ मिलती है उसे क्यों कंसिडर नहीं किया जाता? वो 28 डेज इसलिए कंसिडर नहीं किया जाता है, बेसिकली उसमें दो तीन मतलब चीजें इन्वॉल्व हैं। एक तो ये है कि आपके पास 28 डेज वैल्यू जो ना, आप कोई मिक्स डिजाइन करेंगे ना, तो जाहिर है कंस्ट्रक्टर तो वेट नहीं करेगा आपको एक साल तक आप वैल्यू लेते रहो और मुझे जो ना फिर डिजाइन का स्पेसिफिकेशन दे दो। आप जस्ट यू विल हैव जस्ट 1 मंथ आप उस पर टेस्ट कर सकते हो ना, आप 7 डेज पे कर लो, 14 पे कर लो, 28 डेज पे कर लो, विद इन ए मंथ आप उसको जो ना अपना रिजल्ट दे देंगे कि भाई ये दिस इज अ डिजाइन वैल्यू फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, तो वो डिजाइन वैल्यू को फिर अपने डिजाइन में यूज करेगा, सही है। और उसके बाद जो है जो स्ट्रेंथ गेन होती है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी में आती है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी में कंक्रीट जो ना ओवर द ईयर डिटरेशन भी कर सकती है ना, डिटरेट भी हो सकती है, कुछ ड्यूरेबिलिटी इशू भी आ सकते हैं, तो वो जो ड्यूरेबिलिटी इश्यूज होंगे तो वो ऑफ सेट करेंगे उस वैल्यू को जो 28 डेज से ऊपर फॉल की, ठीक है। ओके, जस्ट कि सर
laboratory experiments conducted on a particular mix shown a strength of 32.5 megapascal for a fully matured concrete. Find whether form work can be removed for identical concrete placed at cold region like Skardu at the age of 15 days when the average temperature is 5 degrees Celsius if concrete is likely to subjected to stripping strength of 25 megapascal. ठीक है, तो आपके पास जो है डिजाइन स्ट्रेंथ कितनी है इसकी 32.5 मेगापास्कल, वेयर एज जो है whether we can remove the form work at 15 age at day 15 ये remove कर सकते हैं नहीं कर सकते for average temperature of 5 डिग्री सेल्सियस। तो आपके पास जो स्ट्रिपिंग स्ट्रेंथ है वो कितनी रिक्वायर्ड है बच्चों? इफ यू वांट टू रिमूव द फॉर्म वर्क तो उसकी स्ट्रेंथ आपके पास कंक्रीट की कितनी होनी चाहिए 25 मेगापास्कल। 25 से अगर हम कैलकुलेट करेंगे 15 डेज पे इसकी मैच्योरिटी वैल्यू, इफ इट इज मोर देन ये जो ना से 25 से ऊपर फॉल की तो देन इट कैन बी रिमूव्ड एट 15 डेज। तो अगर फॉल ना कर की 15 पे तो देन इट कैन फॉर्म वर्क कैन नॉट बी रिमूव्ड। ठीक है, तो इसके दो अप्रोचेस हैं, डिफरेंट अप्रोचेस हैं। ठीक है, अप्रोच 1 क्या है आप पहले ये देख लें। अप्रोच 1 इज 15 डेज वैल्यू को आप कैलकुलेट करें 5 डिग्री सेल्सियस के साथ मैच्योरिटीज की, तो क्या आएगी इसकी मैच्योरिटी 5760 डिग्री सेल्सियस आवर्स। तो आपके पास जो है डिजाइन स्टैंडर्ड कितनी है 32.5 will have a coefficient has 22 and B will have 61, ऐसे ही है ना। यहां से आप देखें 32 किधर फॉलो करता है बच्चों? जोन 2 में सर, दूसरे लाइन दो जोन में ना, एक कितना है 21 एंड बी इज 61। तो आपने तो कैलकुलेट किया 67, लिसन 67.38% आपके पास है। इस परसेंटेज को आप कैलकुलेट करो, इस पे आप जो ना स्ट्रेंथ ऑफ एट 15 डेज, स्ट्रेंथ ऑफ 15 डेज कितनी थी परसेंटेज 67%। 67% ऑफ 32.5 विल बी 21.9 मेगापास्कल। तो दिस 21.9 मेगापास्कल इज लेस देन 25। तो आप फॉर्म वर्क रिमूव कर सकते हैं? फिर नहीं कर सकते ना, कंक्रीट इज येट टू बी मैच्योर, तो उतनी मैच्योर नहीं है कि इसका फॉर्म वर्क रिमूव कर दे। तो since the strength of concrete is less than the stress to which it is likely to be subjected while stripping the formwork, the concrete may fail. Therefore, formwork cannot be removed. ठीक है ना, ये स्टेटमेंट भी इस तरह। एक्सक्यूज मी सर जी सर, ये 32.5 है ना सर, ये तो जोन 2 और जोन 3 दोनों में लाई करता है। जोन 2 का एंड है और जोन 3 का स्टार्ट है, तो हमें किस तरह पता चलेगा कौन सा जोन लेना है? 2.5 जोन 2 किधर है? जोन 2 में तो अच्छा हाँ, अगर 35 डायरेक्ट हो ना तो आप पिछला वाला जोन लेंगे, कोई इशू नहीं है। आप ये भी ले लें तो भी फर्क नहीं पड़ता इससे। ओके सर। तो सेकंड तरीका कैसे क्या है? व्हाट इज द अनदर मेथड? ये बच्चे another method is also very simple. क्या है आपके पास कितना है 32.5 मेगापास्कल आपके पास क्या है अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। आपके पास 25 मेगापास्कल आपको रिक्वायर्ड है। किस पे रिक्वायर्ड है? 15 डेज पे। अगर 15 डेज पे मिलती है नहीं मिलती आपने देखना है। तो कितना आप क्या करेंगे, व्हाट यू विल डू, तो आप इसकी परसेंटेज फाइंड करें। परसेंटेज कितनी बनती है इसकी? ये 25 की सर जी, ये 25 into 100 डिवाइड बाय 32.5 परसेंटेज कितनी बनती है? 55 into 100
divided by 32.5, तो इस 76.9, ठीक है ना। तो आपने क्या कैलकुलेट करना है, 76.9 आपके पास परसेंटेज है, परसेंटेज स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड। तो आपने परसेंटेज स्ट्रेंथ इससे यहाँ से कैलकुलेट करनी है, तो आपके पास क्या आएगी परसेंटेज यहाँ पे 66 पॉइंट, तो आपके पास रिक्वायर्ड कितनी परसेंटेज होनी चाहिए थी, 76। सो दिस इज क्वाइट लेसर देन दैट अदर वैल्यू। तो उस पर भी आप कर सकते हैं, फिर आपको ये स्टेप जो ना करने की जरूरत नहीं है उस केस में। यस सर। ठीक है ना। ओके, नाउ असाइनमेंट। A particular mix shows a strength of 35 megapascal for fully matured concrete. सर Estimate शो number नहीं of हो रहा सर days। असाइनमेंट। क्यों नहीं शो हो रहा? Slide में वो नहीं हो रहा सर। शो हो रहा है यार, जस्ट अ मोमेंट, ये स्लाइड शो हो रही है। वो एग्जाम्पल 3 एग्जांपल शो हो 3 रहा है शो सर। हो रही है सर। एंड नाउ एम सर एग्जांपल 3 शो हो रही है। जस्ट अ मोमेंट,